छात्रों और प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है वीके एजू मीडिया में। ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹിന്ദി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. മൊത്തം 80 മാർക്കാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ളത്. ഇതിനുവേണ്ടി 160 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചോദ്യപേപ്പറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം 34 ചോദ്യങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എഴുതാനുള്ള സമയം 2.5 മണിക്കൂറാണ്. 20 മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈമിന് പുറമെ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ 8 ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതിൽ 4 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതം. ആകെ ആ വിഭാഗത്തിൽ 4 മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. 9 മുതൽ 14 വരെ ഉള്ള 6 ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 3 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും 2 മാർക്ക് വീതമാണ്. അങ്ങനെ ആ വിഭാഗത്തിൽ 9 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ 6 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇനി 15 മുതൽ 24 വരെ 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് 5 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ്. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 6 മാർക്ക് വീതമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ വിഭാഗത്തിൽ 6 മാർക്ക് വീതമുള്ള 5 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എഴുതണം. അതിന് 30 മാർക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി 25 മുതൽ 34 വരെയുള്ള 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ 10 ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 5 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 8 മാർക്ക് വീതം. അങ്ങനെ 5 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 8 മാർക്ക് വീതം 40 മാർക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സമയം കണക്കാക്കി ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ അതാത് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അത്രയും എണ്ണം ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ആൻസർ എഴുതിയതിന് ശേഷം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും അധികം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, അനുതാപ് കിസ് വിധാ की रचना है? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, जुलूस नाटक के किसी एक पात्र का नाम लिखे. 3, मधुर ऋतु किसकी कविता है? 4, प्रभुता से प्रभु दूरी, प्रभुता से कौन दूर हो जाता है? 5, जिस पर अंकित हैं आंसू, थकान, विश्राम और प्रेम की स्मृतियाँ, किस पर? ആദ്യം നമുക്ക് ഈ 5 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ലഘുകഥ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം അലി, അതുപോലെ തന്നെ ബീർബൽ സിംഗ്, മായ്ക്കു, ശംഭുനാഥ്, ദീൻ ദയാൽ, അങ്ങനെ കുറേ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലുണ്ട്. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു ഉത്തരം ഇബ്രാഹിം അലി എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളും എഴുതാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ജയശങ്കർ പ്രസാദ് എന്നാണ്.
നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് പ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വർ എന്നുള്ള ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് പത്ഥർ കി ബെഞ്ച് പർ, പത്ഥർ കി ബെഞ്ച് പർ എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം. ആറാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കാം. സംഭ്രാന്ത് महिला किस गाड़ी से यात्रा कर रही थी? 7 हेमा किस कहानी का पात्र हैं? 8 आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, यह किसने कहा? 9 पत्थर की बेंच पर बैठकर बच्चा क्या कर रहा है? 6 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം. ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം റെയിൽഗാഡി സെ, 7 ദുഃഖ്, 8 चांद, 9 पत्थर की बेंच पर बैठकर बच्चा रो रहा था, वो बिस्कुट कुतरते हुए चुप हो जाता है. പത്താമത്തെ ചോദ്യം रिक्शे से उतरकर यात्री अपराधी की भांति सिर झुकाए चल रहा था, क्यों? ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം. यात्री की हमदर्दी के अभाव से ही असलम की मृत्यु हुई. असलम की मृत्यु की खबर सुनते यात्री अपना अपराध समझकर रिक्शे से उतरकर सिर झुकाए चल रहा था. 11ാമത്തെ ചോദ്യം दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय, इस दोहे का तत्व क्या है എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ പരിശോധിക്കാം. सब लोग दुख के अवसर पर ईश्वर का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख के अवसर पर कोई स्मरण नहीं करता है. सुख के अवसर पर भी ईश्वर का स्मरण करे तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा. അടുത്ത ചോദ്യം भागो सूखे तिनको, सूखे तिनके से क्या तात्पर्य है? 13ാമത്തെ ചോദ്യം वृद्ध संभ्रांत महिला फल और फूलों के बीज क्यों फेंक रही थी? 12, 13 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. 12ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പ്രേം വിഹീൻ ലോഗോं को सूचित करते हैं എന്നാണ്. 13ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം वृद्ध संभ्रांत महिला ने सोचा कि अगर इससे कोई जड़ पकड़ ले तो दूसरों को फायदा होगा. 14ാമത്തെ ചോദ്യം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ്. अपराध कहानी में पिताजी ने बड़े भाई को मारा, क्यों? यह अपराध कहानी का प्रश्न है. ये आउट ऑफ फोकस एरिया का प्रश्न भी है, हम इसका उत्तर देखेंगे. छोटे भाई ने पिताजी से कहा कि बड़े भाई ने मुझे खटबल से मारा. यह सुनकर पिताजी ने बड़े भाई को मारा. यही है इस प्रश्न का उत्तर. 15ാമത്തെ ചോദ്യം कवितांश की आस्वादन टिप्पणी लिखे. आशा से अंकुर झूलेंगे, पल्लव पुलकित होंगे, मेरे किसले का लघु भव यह, आह खिलेगा किनको. हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे. जयशंकर प्रसाद छायावाद के अग्रणी कवि हैं. मानवीकरण, प्रकृति चित्रण, काल्पनिकता, लाक्षणिकता आदि छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं. मधुरतु कविता में छायावाद की सारी विशेषताएं समाहित हैं. इस कविता में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण है. इस कविता में वसंत ऋतु को कवि ने प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है. कवि कहते हैं कि वसंत के आगमन से पृथ्वी में नए नए अंकुर झूलेंगे और पल्लव पुलकित होंगे. इसी प्रकार प्रेमिका के आगमन से कवि के दिल में नई नई आशाएं जागृत हो जाती हैं. प्रकृति में आने वाले यह सौंदर्य सबको अच्छा लगता है. वसंत का आगमन मनमोहक है. इस प्रकार प्रेम की अनुभूति भी मनमोहक और
हृदय को उन्माद देने वाली है। कवि कहते हैं कि प्रेम का मधुर एवं मोहक संसार किसी को बुरा नहीं लगेगा, अर्थात प्रेम का संसार सबको अच्छा लगता है। प्रेमिका के आगमन से कवि के जीवन में आने वाले परिवर्तन का चित्रण यहाँ दिया गया है। निराशा में रहने वाले कवि के हृदय में प्रेमिका के आगमन से नई आशाएं उत्पन्न होती हैं। मधुरदू कविता की इन पंक्तियों में प्रकृति वर्णन और मानवीकरण जैसे छायावाद कविता की सारी विशेषताएं निहित हैं। 16 ചോദ്യം, ये कथन पढ़े और इब्राहिम अली के चरित्र पर टिप्पणी लिखे। वापस तो हम न जाएंगे, हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं, हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। जुलूस नाट्य रूपांतर का मुख्य पात्र है इब्राहिम अली। वे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए स्वराज्यों के जुलूस का नेतृत्व करते हैं। वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी हैं। वे गांधी जी के अहिंसावाद पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हैं। उनके कथन से यह स्पष्ट हो जाते हैं कि वे अहिंसावादी और ईमानदार हैं। पवित्र देश प्रेम, वीरता और साहसिकता उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। दृढ़चित्त उनके चरित्र की और एक विशेषता है। भारत को स्वतंत्र कराने की प्रतीक्षा और प्रत्याशा उनके कथन से व्यक्त होते हैं। वे अपने अनुयायियों पर विश्वास रखने वाला आदमी हैं। 17 ചോദ്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना मुझसा बुरा न कोई. इस दोहे का भावार्थ लिखे। हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। कबीरदास हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। वे एक सफल समाज सुधारक थे। वे अंधविश्वास और अनाचार का विरोध करते थे। वे स्वयं पढ़े लिखे नहीं होने पर भी देशाटन और साधुओं की संगति से उनका अनुभव ज्ञान अपार था। उनकी वाणी बीजक में संकलित हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास कहते हैं कि वे बुरे लोगों की खोज में निकले तो उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। वे कहते हैं कि जो अपने दिल में खोजते हैं तो समझ सकते हैं कि हमसे बुरा कोई नहीं है। उनके अनुसार हमें अपनी बुराइयों और कमियों को समझकर उसे सुधारना चाहिए। लेकिन मनुष्यों का आदत यह है कि अपनी बुराइयों को छुपाकर दूसरों की कमियों को ढूंढना है। इस दोहे का तत्व यह है कि अपने को पहचानने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। 18 ചോദ്യം, जीवन वृत्त के आधार पर चित्रा मुद्गल के बारे में एक अनुच्छेद लिखे। जीवन वृत्त यहाँ दिया गया है, हम पढ़े। नाम चित्रा मुद्गल, जन्म 10 दिसंबर 1944। प्रमुख रचनाएं गिलीगढ़, आवा, भूख, लपटें, एक ज़मीन अपनी। पुरस्कार इंदु शर्मा कथा सम्मान, उत्तर प्रदेश साहित्य भूषण। हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। श्रीमती चित्रा मुद्गल का जन्म 10 दिसंबर 1944 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। वे हिंदी साहित्य के जाने माने लेखिका हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को संपन्न बनाया है। उनकी प्रमुख रचनाएं गिलीगढ़, आवा, भूख, लपटें, एक ज़मीन अपनी आदि हैं। इंदु शर्मा कथा सम्मान, उत्तर प्रदेश साहित्य भूषण आदि पुरस्कारों से वे सम्मानित हुए। कहानी, उपन्यास, नाट्य रूपांतर आदि सभी विधाओं में उन्होंने रचनाएं की हैं। वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखिका हैं। അടുത്തതായി നമുക്ക് 19 ചോദ്യം നോക്കാവുന്നതാണ്। 2 कॉलम यहाँ दिया गया है। पहले कॉलम में घटना और दूसरे में पात्र। घटना और पात्र का सही मिलान करना है। घटना और पात्र का सही मिलान करना है। पहले घटना के
कॉलम में ये दिया गया है, यात्रियों को टिकट देना, आम की गुठलियाँ बोना, सुंदर लिपि में लिखना। पात्र के भाग में दिया गया है, बूढ़ा आदमी, बैंक का क्लर्क, टिकट बाबू। हम ये देखेंगे कि ये कैसे मिलान करें। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। यात्रियों को टिकट देना, टिकट बाबू, आम की गुठलियाँ बोना, बूढ़ा आदमी, सुंदर लिपि में लिखना, बैंक का क्लर्क। अब हम 20वां प्रश्न देखेंगे। 20ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. कवितांश का आशय लिखे. इस पत्थर की बेंच के लिए भी शुरू हो सकता है किसी दिन हत्याओं का सिलसिला. इसे उखाड़ कर ले जाया अथवा तोड़ा भी जा सकता है. हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे. पत्थर की बेंच चंद्रकांत देवताले की समकालीन कविता है. चंद्रकांत देवताले ने अपनी कविताओं में वर्तमान समाज की विद्रूपताओं पर प्रहार करने का सफल प्रयास किया है. इस कविता में कवि सार्वजनिक जगहों के नष्ट होने की आशंका प्रकट करते हैं. पार्क में वर्षों पुरानी एक पत्थर की बेंच स्थित है. एक बच्चा, युवक, प्रेमी प्रेमिका और रिटायर्ड बूढ़ा आदि इस बेंच का सहारा लेता है. सभी पीढ़ी के लोग इस बेंच का उपयोग करते हैं. इस बेंच पर आंसू, थकान, विश्राम और प्रेम की स्मृतियां अंकित हैं. इन पंक्तियों में कवि ये आशंका प्रकट करते हैं कि इस बेंच से संबंधित हत्याओं की सिलसिला शुरू हो सकता है. कभी ये बेंच उखाड़ ले जा सकता है या तोड़ा भी जा सकता है. इस पत्थर की बेंच के इतिहास के बारे में लोग अज्ञात हैं. इस बेंच पर पहले कौन बैठा होगा इसका पता नहीं. ऐसी एक सार्वजनिक स्थान से संबंधित लड़ाई शुरू होने से कवि आशंकित हैं. लोगों को सुख एवं शांति प्रदान करने वाला जगह नष्ट होने से लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है. सार्वजनिक स्थानों का नष्ट होना आधुनिक युग का अभिशाप बन गया है. 21ാമത്തെ ചോദ്യം. अंग्रेजी संवाद का हिंदी में अनुवाद करें. अंग्रेजी में जो संवाद यहाँ दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद करना है. कुछ शब्द, कठिन शब्द ऊपर दिया गया है. होमवर्क, गृह कार्य, फिनिश्ड, पूरा किया. राम: हेलो जोसेफ, डिड यू फिनिश द होमवर्क? जोसेफ: यस, आई फिनिश्ड. राम: डिड रहीम हेल्प यू? जोसेफ: यस. व्हाट अबाउट यू? राम: यस, आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट इटसेल्फ. हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे. राम: हाय जोसेफ, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर दिया? जोसेफ: हाँ, मैंने पूरा किया. राम: क्या रहीम ने तुम्हारी सहायता की? जोसेफ: हाँ, तुम्हारी बात क्या है? राम: हाँ, मैंने कल रात को ही पूरा किया था. 22ാമത്തെ ചോദ്യം. 22वां प्रश्न. उन थोड़े से शब्दों द्वारा उस क्लर्क के जीवन में किंचित मात्र भी क्यों न हो सुख तो पहुंचा सका. लेखक अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन करता है. वह आत्मकथांश तैयार करे. लेखक की आत्मकथा है. इस प्रश्न का उत्तर हम देखें. एक दिन मैं बैंक में हिसाब खोलने के लिए गया. क्लर्क पासबुक में दर्ज करने के लिए मुझसे सवाल पूछ रहा था. मैंने अपना नाम, पता आदि बता दिया. जब वो पासबुक में आवश्यक विवरण दर्ज कर रहा था तो मेरी दृष्टि उनकी हस्तलिपि की ओर गई. कितना सुंदर अक्षर है उनका. मैं चकित हो गया. मैंने उनसे कहा कि आपकी लिपि बहुत सुंदर है. मैंने पासबुक दिखाने को कहा. उनका अक्षर देखकर मैंने कहा कि ब्यूटीफुल. मैंने उनके मुख की ओर देखा. क्या बताना है, उनके मुख पर खुशी छाई हुई थी. मुझे पता चला कि उनका तमाम दिन बैंक के हिसाब की रूखी आंकड़ों में लग जाने के कारण नीरस में बीतता था. मेरे अच्छे शब्दों के कारण उनको बड़ी राहत मिली. उस दिन मुझे भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरे थोड़े से शब्दों से उनको कुछ न कुछ सुख पहुंचा सका. 23ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. बच्चे की माँ और दिलीप
दोनों के मुंह से निकलते हैं भूख नहीं है। दोनों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस कथन की विवेचना करके टिप्पणी लिखे। ये आउट ऑफ फोकस एरिया का प्रश्न है, भूख कहानी का प्रश्न है। हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। यशपाल की कहानी दुख में भूख की सार्वलौकिकता का चित्रण है। सब जीवों की प्राथमिक आवश्यकताओं में पहला स्थान खाने का है। इस कहानी में दुख के अलग अलग मापन का सुंदर वर्णन है। दुख का अनुभव आपेक्षिक है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं दिलीप, पत्नी हेमा, एक लड़का और उसकी माँ। दिलीप जब पार्क से लौट रहा था तब एक बच्चे से मिला। बच्चे और माँ की आर्थिक परिस्थिति ने दिलीप को दुखी बनाया। उनके घर में केवल 2 रोटियां बची थी, इसलिए अपने प्यार भरे बच्चे को खिलाने के उद्देश्य से माँ ने कहा कि भूख नहीं। असल में वे भूखी थी। यह दृश्य देखकर दिलीप का मन द्रवित हो गया। घर लौट आने के बाद दिलीप ने नौकर से कहा कि भूख नहीं। अभावग्रस्त माँ और बेटे की हालत सोचकर वह अपना भूख भूल गया था। माँ बेटे के असली दुख के सामने अपने और हेमा के दुख को नकली दुख मानता है, इसलिए उन्होंने नौकर से कहा कि भूख नहीं। बेटे की माँ और दिलीप के कथन में बड़ा अंतर है। दिलीप के अनुसार बेटे की माँ का दुख वास्तविक दुख है। 24 ചോദ്യം कहना नहीं आता कविता के आधार पर हाशियकृत नारी विषय पर एक लेख तैयार करें। यह आउट ऑफ फोकस एरिया का प्रश्न है। इसके लिए आवश्यक सूचक नीचे दिया गया है, वो इस प्रकार है। परिवार में नारी का शोषण, समाज में नारी का उत्पीड़न, अपने अधिकारों के प्रति सचेत। हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। हाशियकृत नारी, कहना नहीं आता युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि कवि पवन करण की रचना है। पवन करण की कविता साधारण एवं शोषित लोगों के जीवन की व्याख्या है। कहना नहीं आता कविता में हाशियकृत जनसाधारण की असहायता का चित्रण है। हमारे देश में पुराने ज़माने से लेकर नारियों की स्थिति गंभीर है। समाज में नारी सभी क्षेत्रों में पीछे रह जाती हैं। यदि परिवार में उनकी दशा के बारे में विचार करें तो समझ सकते हैं कि पुरुषों का अप्रमादित्व है। कभी कभी पारिवारिक बातों में उनकी राय को स्वीकार नहीं करते हैं। पिछले ज़माने में शिक्षा, कामकाज आदि क्षेत्रों से उन्हें दूर रहना पड़ता था, लेकिन आज स्थिति में कुछ सुधार आया है। पुरुष केंद्रित सामाजिक व्यवस्था का पालन अब भी हो रहा है। नारी की आवाज़ को कभी कभी मूल्य नहीं देती थी। नारी का उत्पीड़न आज भी हम देख सकते हैं। इसका कारण कभी कभी आर्थिक संबंधी होती हैं। दहेज संबंधी उत्पीड़न भी बढ़ती जा रही है। ऐसी अनेक कारणों से नारी शोषित और हास्यकृत हो जाती हैं। नारी को पुरुष के समान मानने के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा प्राप्त करने से नारी अपने अधिकारों से सचेत बन जाते हैं। इस प्रकार हास्यकृत नारी को मुख्य धारा में ला सकते हैं। अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी प्रश्न या 25वां प्रश्न से लेकर 34वां प्रश्न तक हम अगले एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।